Hi everyone, welcome to the first episode of Code Kar. The best way to learn the art and science of software development is to start coding before you think you are ready. And hence we are doing this. Today we have a very special guest with us, Sanket. He was one of my students. The achievement of a guru is that his students should surpass him, and Sanket did that in a very short period of time. I just showed Sanket the right direction. Whatever he is today is because of his hard work, humility, and ambition. So, welcome, Sanket. Welcome to the show. Hello, Tushar sir. Glad to be the first guest on your podcast show. Really glad to be here and really excited to discuss a couple of things with you in this session. Yep. So, Sanket, what do you do right now? So at this point of time, जब हम ये podcast record कर रहे हैं, I work as a software engineer too at Microsoft Level 61. Microsoft में I work with the Bing Ads team, मतलब जो bigger group है, that's the Bing Ads team. And Bing Ads में मेरा contribution क्या है? I work with the billing infrastructure backend engineering team. So we are responsible for to make sure everything on the product side of billing works fine. So we prepare the infrastructure of that. Uh, that's the current piece of work that I do as a full-time software engineer. Okay. So, can you tell us about your journey also from where did you start and how did you reach Microsoft SDE 2? Like, what has that journey been for you? Yeah. I believe that I'll start with the relevant part. मतलब स्कूल में क्या करते थे उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं मुझे. But school में I had exposure to computer science. School में I had Python. Interestingly, I was the first batch of CBSE which got introduced to Python. तो हमें Python खुद से पढ़नी होती थी. पुराने कोई sample paper, 10-year paper exist नहीं करते थे. So we had to struggle our way out. उस टाइम पे मतलब I was good enough, बहुत अच्छा ऐसे क्रेजी कुछ कोड नहीं लिख पाता था मैं, क्योंकि अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पे ज़्यादा फोकस होता था. But I believe my actual journey started from college. I graduated in 2020 from Maharaja Agrawal Institute of Technology in Computer Science. तो 2016 में मैंने कॉलेज ज्वाइन करा था आईटी में. देन ब्रांच अपग्रेड वगैरह हो गई, चैम्बर ले आया था मैं फर्स्ट सेमेस्टर में. तो फ्रॉम देयर आई गॉट मोर एक्सपोजर टू कंप्यूटर साइंस की मतलब एक्चुअल में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है. आई स्पेंड अ गुड 1 year learning algorithms, data structure, and then of course from my second year you mentored me for the web dev part. तो Rails से अपनी Rails and Sinatra से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी मैंने. I still have my first to-do app written in Sinatra on my GitHub. So I learned a couple of things around in dev, and then in college कुछ internships try करी छोटे startups में. मतलब पीतमपुरा के फ्लैट में 10 लोग बैठ के काम कर रहे हैं, जनकपुरी के फ्लैट में 10 लोग बैठ के कुछ तो ऐप बना रहे हैं. I started from there as a small intern. Then was fortunate to get the chance to contribute to Google Summer of Code. 2019 I got selected for Google Summer of Code. So it's an open source program. So my organization was Workman Teen Center at Harvard University. तो वो वहाँ का सारा ओपन सोर्स प्रोग्राम एंड टेक संभालते. तो उसमें आई हैड अ Meteor JS based open source app. And then वहाँ से there was no turning back. I got my first I would say placement offer at Interview Bit. And कॉलेज मेरा 2020 में खत्म हुआ था, तो टेक्निकली मैं कोविड पास आउट बैच हूँ. बट जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं वो सारे मैंने ऑफलाइन ही दिए. आई जॉइंड लिंक्डइन post college as my first full time engineering job. LinkedIn में I was part of the enterprise provisioning team as a full stack engineer. I was with LinkedIn for a year, and then I shifted to Google. In Google I contributed to Google Pay as a full stack engineer, but थोड़ा सा UI heavy part. So we used to handle everything around the GPay India, जो भी इंडिया में गूगल पे यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलता है, उसका फ्लटर एप्लीकेशन जावा बैकएंड हम लोग देते थे. I spent 2.5 years, more than 2.5 years at Google, and now I'm part of Microsoft as well as. Okay, so from 2017, when you started learning web development, you graduated in 2020, and within 4 years, you became SDE2 at Microsoft. That has been an impressive journey and rise for you. So, let us, like, if you can help us know, like, what has been like key turning points in your career? Like, okay, after this point, you know, I was changed as a person, or this internship helped me a lot, or like this job helped me a lot, and my career trajectory changed after that. If I think about key events, there are a couple of key events
मतलब आई बिलीव कि ओवरऑल एज अ इंजीनियर इवॉल्व करने के लिए देयर इज नॉट ओनली द टेक पर्सपेक्टिव, बट कुछ नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो लाइक धीरे धीरे से आती है. सो देयर हैज बीन टू मेजर इवेंट्स आई वुड से. पहला 2017 में ही था. I had to deploy my first website that I built in Rails. और you taught us कि कैसे AWS चलता है and everything. Interesting part was कि आपने पढ़ाया कि AWS पे जो एक्चुअल कंपनीज में या स्टार्टअप्स में जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, हमने वहीं पे प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट करना सीखा. एंड आई मेड एन ऐप जिसकी डिप्लॉयमेंट में आई हैड सम इश्यूज एंड आई कॉल्ड यू कि ऐसा ऐसा इशू हो रहा है. एंड यू कॉल्ड कि ठीक है, मतलब मिलते हैं, मिलके बैठ के देख लेंगे क्या डिबग करना है. आई स्पेंड लाइक गुड 2-3 days ऑल टुगेदर, और मतलब ऐसे 16-17 घंटे पर डे मैंने स्पेंड किया. और एक छोटा सा कुछ तो बग था जो नहीं हो रहा था रिजॉल्व. एंड देन जिस दिन आपने बुलाया एंड आपके आने से 15-20 मिनट पहले मैं आ गया था, और उसी टाइम पे वो बग सॉल्व हो गया मुझसे. मतलब कॉन्टिन्यूस एफर्ट के बाद आई वाज एबल टू सॉल्व दैट बग. दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज मतलब डेव में इनफ कॉम्प्लेक्सिटी है, बट आई विल बी एबल टू मेक अ गुड करियर आउट ऑफ इट. एंड आई हैव सम इंटरेस्ट. मतलब 3 दिन लगातार बार बार अपने EC2 इंस्टेंस को बंद करके नया EC2 इंस्टेंस स्टार्ट करके सेम डिप्लॉयमेंट करना एक अलग ही पेन होता है. एंड आई वेंट थ्रू दैट पेन एंड रियलाइज कि मतलब इनफ एफर्ट करोगे एंड इफ यू हैव रेलेवेंट क्वेश्चंस टू आस्क सो यू गेट अनलॉक. और वहाँ से डेव में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. उसी के बाद लाइक आई मेड श्योर कि हर सेमेस्टर मैं कोई ना कोई डेव इंटर्नशिप जरूर कर रहा होता था कॉलेज के साथ, या कॉलेज से छुट्टी आए उसके बाद. दैट वाज समथिंग. तो जब आपसे मिला उस 15-20 मिनट बाद, आई वाज एबल टू गेट दैट एरर रिजॉल्व. तो हमने फिर बाकी भी शॉर्ट डिस्कस कर लिया. दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट जिससे इंटरेस्ट बन गया. मतलब चीजें सीखते हुए सही लग रहा था कि अच्छा कुछ कुछ तो बन जाता है, बट ये पता करना कि मैं लाइक आई विल बी एबल टू डू गुड इन दिस करियर वाज दैट पॉइंट. एक दूसरा मेजर टर्निंग पॉइंट था ड्यूरिंग कोविड. तो कोविड के टाइम आई हैड ऑफर्स फ्रॉम लिंक्डइन एंड स्ट्रेटलर फॉर द SD1 रोल्स. बट क्योंकि कोविड में एग्जाम नहीं हो रहे थे, तो क्योंकि मेरे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए थे, तो मेरे ऑफर को डेफर कर दिया गया था इनडेफिनेट टाइम के लिए. देन आई रियलाइज कि मतलब टेक एज अ फील्ड भी बहुत अनसर्टेन है. अभी हम लोग रिसेशन देख रहे हैं, बट आई फेस दिस इन 2020 कि मतलब 2 ऑफर होने के बाद भी मैं दोनों में से कुछ भी ज्वाइन नहीं कर सकता. देन आई रियलाइज कि वेन एवर यू हैव टू शिफ्ट, यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर करियर, यू नीड टू हैव गुड बैकअप्स. मतलब बैकअप का अगर एक और बैकअप है तो अच्छा रहेगा. And within 2 weeks, I made sure that I have 2 more offers. तो एक स्टार्टअप था स्लैशलर, और अब उस टाइम पे बड़ी स्टार्टअप था डंजो. आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम डंजो एंड स्लैशलर बोथ. और फिर मतलब जब उनका ऑफर आया तो मैंने इन्फॉर्म करा लिंक्डइन और स्प्रिंकलर में कि मैं अब नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग डेट बता नहीं रहे हो, ना आई हैव टू ज्वाइन समथिंग एल्स. तो फिर लिंक्डइन और स्प्रिंकलर दोनों ने ही मेरी ज्वाइनिंग डेट एलोकेट कर दी कि नहीं कोई बात नहीं, अब एग्जाम नहीं भी हुए तो छोड़ो, आ जाओ. But then eventually I joined LinkedIn. But then I realized if you have backups, that is going to be far more of a better situation, क्योंकि अनसर्टेन चीजें होगी, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में सब कुछ नहीं रहेगा. दैट वाज अ नॉन टेक्निकल लर्निंग एंड अ टर्निंग पॉइंट. और उसके बाद से जब भी मेरे को कुछ शिफ्ट करना होता है, मैं 2 से 3 ऑफर रखता हूँ कि मतलब ठीक है, कंपनीज माइट नॉट थिंक अबाउट यू टू मच, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ. Nice. So, a couple of follow questions on that. Are we in a recession? First. Secondly, in the age of AI, how do you prepare yourself now for jobs, internships, and all of those things? So, are we in a state of recession? I would say partly yes. And matlab, if you are a fresher, then you will feel good friction because of the recession altogether. मतलब problem अभी यही है कि there are jobs for senior engineers, SD2, 3 staff engineer. There is decent jobs, but SD1 is still struggling. मतलब जो कॉलेज से जस्ट पास आउट होकर आ रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं. उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि मतलब जब मैं 2020 में पास आउट हुआ था, उस टाइम पे लीड कोड पे 700 क्वेश्चन होते थे. तो मतलब लीड कोड वाज नॉट द ओनली रिसोर्स जो हम करते थे. वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आजकल स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है कि वो मतलब 600-500 क्वेश्चन लीड कोड पे कर लेते हैं, और वैसे 500 क्वेश्चन 5 लाख और बच्चों ने कर रखे हैं. तो आई बिलीव दे डोंट मेक इनफ एफर्ट टू ट्राई आउट समथिंग न्यू. उसका एक प्रॉब्लम है. उसके बाद मतलब आई डिड सम रिज्यूमे रिव्यूज थोड़े बच्चों के. मैंने ये भी नोटिस किया कि इस एक कॉलेज के 20 बच्चों का मैंने रिज्यूमे रिव्यू किया, 15 के पास एक सेम टू सेम प्रोजेक्ट था, वो नाम तक नहीं बदलते. तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से SD1 वाले रोल के लिए काफी
प्रॉब्लम्स हैं एंड कंपनीज के बजट में भी काफी सिग्निफिकेंट कट हुआ है। जैसे पीएम रोल्स है, पीएम रोल्स मेरे को अब बहुत कम दिखते हैं रिलेटिवली, जब वो 2022 या 2021 में दिखते थे स्टोर अब। बट SD2 SD3 के लिए देर इज इनफ हायरिंग इन द बिग टेक। मतलब जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उबर, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब हायर कर रहे हैं, बट लिमिटेड हायरिंग है। और हायरिंग की डिफिकल्टी 2019-2020 पे वापस आ चुकी है। बीच में हायरिंग की डिफिकल्टी भी बहुत ज्यादा गिर गई थी। मतलब आई हैव अ कपल ऑफ सिचुएशन जहाँ पे मतलब गूगल भी मतलब लिंक लिस्ट पूछ रहा था। और मतलब मैं मेरे इंटरव्यू में, जब मेरा इंटरव्यू होता तो ग्राउंड्स में या तो डीपी होता था या ग्राफ होता था या तुम बाहर होते थे। अब लिंक लिस्ट भी पूछा जा रहा था, तो मुझे लगा कि मतलब देयर वाज अ डिक्लाइन इन द हायरिंग बार। बट अब वो हायरिंग बार दोबारा 2019 से पहुंच गया, तो प्रेपरेशन डिफरेंट। अब बिकॉज की एआई आ चुका है एंड इट्स पार्ट ऑफ अस, मतलब देयर इज नो टर्निंग बैक। अब ऐसा नहीं होगा कि चैट जीपीटी चला जाए, हाँ महंगा हो जाएगा शायद या फ्री ना रहे, बट इट विल स्टिल एग्जिस्ट। तो आई टू यूज इट वेरी हेल्पली। मतलब मैं अपने डे टू डे वर्क में चैट जीपीटी को एक्सट्रीम लेवल पे यूज करता हूँ। मतलब इफ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, तो फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं SD2 का इंटरव्यूज दे रहा था, तो लो लेवल डिजाइन, मशीन कोडिंग, हाई लेवल डिजाइन, ये ग्राउंड्स मोस्टली प्रोसेसेस का पार्ट होते हैं। तो अब जैसे लो लेवल डिजाइन के आप स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़ोगे, तो वहाँ पे सिनेरियो क्या होता है कि अगर कोई भी डिजाइन पैटर्न है, तो उसको एनिमल, कैट, डॉग के इनहेरिटेंस से समझा रहे होते हैं। वो मुझे पहले भी समझ में नहीं आता था, वो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि या तो मैंने वैसे किसी प्रॉब्लम पे काम करा हो तो मुझे याद आ जाए कि अच्छा मैंने इस तरीके से क्लास स्ट्रक्चर बनाया, या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अच्छा आई हैव टू लर्न अबाउट स्ट्रेटजी पैटर्न। मान लो कि मैं बुक माई शो में इंजीनियर हूँ और मुझे कुछ ऐसा फीचर बिल्ड करना है XYZ। अब ऐसे फीचर में कहाँ पे स्ट्रैटेजी पैटर्न लग सकता है, यू टेल मी। और वो बढ़िया बढ़िया सिचुएशंस मुझे लाके देता है। ऐसे ही जैसे मतलब एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं दुबई में कॉन्फ्रेंस में एज अ स्पीकर गया था, तो वहाँ पे मेरा एक सेशन था डिजाइन पैटर्न्स। अब वो कॉन्फ्रेंस पाइथन की थी, बट मैंने वैसे डिजाइन पैटर्न्स C++ और जावा में कोड करे हुए हैं, तो ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, बस लैंग्वेज का फर्क था। तो उस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए मुझे लाइक मतलब 15 मिनट्स लगे, क्योंकि चैट जीपीटी ने मेरे जावा के सारे जो पुराने कोड बेसिस थे उसमें एक एक करके पाइथन में कन्वर्ट कर दिया, लाइक इट वाज दैट इजी। तो मतलब प्रिपरेशन करना किसी भी चीज के लिए आई वेरी हेवीली यूज इट। और मतलब देयर आर मोर वेज मतलब आ, कोई छोटा प्रोजेक्ट भी तुम बना रहे हो, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी तुम्हें ऐड करनी है, किसी डिप्लॉयमेंट में तुम फंसे हुए हो, उसके स्टेप्स देखना है, देयर आर लॉट ऑफ वेज। इससे मैं तो एटलीस्ट यूज करता हूँ एंड पीपल शुड आल्सो ट्राई। मतलब रादर देन कि DSA के क्वेश्चन तुम उससे सॉल्व करवा रहे हो, वो नहीं कर पा रहा है और फिर तुम हंस रहे हो कि अच्छा यार ये तो नहीं कर पाता कुछ भी। यू शुड ट्राई टू यूज इट इन अ फार मोर बेटर, आई थिंक। तो लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी इट विल हेल्प यू अ लॉट। या बट अगर काम करने को बोलोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। फिक्स है, तो हाँ। यू आर तो जो भी स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं, ऑल द पैटर्न्स दे आर इन द वर्ल्ड, यू कैन अंडरस्टैंड देम वेरी इजीली नाउ। यस, दैट्स अ गुड थिंग, लाइक लर्निंग हैज़ बिकम वेरी इजी। यस, वेरी वेरी शार्प। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब ES मतलब कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें ES लिंट कॉन्फ़िगर करना है। अब मैं ES लिंट के लेटेस्ट वो सारे स्टैंडर्ड पढ़ने नहीं जाता, मैं चैट जीपीटी में लिख देता हूँ ES लिंट पे ये फीचर चाहिए, वो एक बार में ES लिंट आज से लिख देता है और तो प्रोजेक्ट में डाल देता है। ऐसे रेपिटेटिव टास्क जो बोरिंग है, रीडमी लिखनी है, पूरे प्रोजेक्ट की रीडमी लिखनी है, पूरे प्रोजेक्ट की रीडमी मैं नहीं लिखूंगा, वो रीडमी लिख के दे देगा, प्रोजेक्ट सेटअप के स्टेप्स लिख के दे देगा। ऐसे जो रिडंडेंट टास्क है, वो मैं तो डेफिनेटली पूरा डिपेंड करता हूँ अभी ये खुद से लिखने के बाद ये करता हूँ। तो बॉयलर प्लेट काम, जो सारे काम हमें अच्छे नहीं लगते, डेव्स के लिए वो बहुत इजी कर दिए जीपीटी ने। तो इट्स अ या ग्रेट टाइम टू बी अ डेव राइट नाउ। या मेक सेंस, या I keep saying this. It's a great time to be a developer right now because all the boilerplate code, all the boring stuff has been automated by GPT. या It has been made significantly easier. And now you can actually focus on building things, not on figuring out, okay, how this works, how this works. You can easily ask GPT how this works. It will tell you, and then you can use it in the right place. या Okay. So one more question. The internships that you did, वो 10 लोगों के flat में, were they paid? And should you do unpaid internships? And what is the purpose of doing internships? Like, if you have to advise all those young coders, like if you have to do internship, what should be their one north star that they should look for while doing an internship? वर दे पेड? यस, मेरी कोई भी इंटर्नशिप वैसे अनपेड नहीं रही है। मतलब इतना पे होता था कि मतलब मेट्रो
और लंच के एक्सपेंसेस निकल जाए और कुछ ऐसे पॉकेट मनी टाइप बच जाए। इतना बेयर मिनिमम ही होता था बट पे होता था और उस टाइम के हिसाब से वो भी डिसेंट था। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि जो बिग टेक थे वो भी 50,000 स्टाइपेंड देते थे। ऑफ कोर्स उतना स्टाइपेंड नहीं होता था बट डिसेंट होता था। मतलब मुझे दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ रहा, मेट्रो से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, तो इट वाज पेड। आई जनरली डू नॉट रिकमेंड पीपल टू डू अनपेड इंटर्न्स। उसका एक रीजन है क्योंकि कई लोग अनपेड इंटर्न्स में थोड़ा सा मतलब स्कैम वैम कर देते हैं। जैसे आई हैव अ फ्रेंड, उससे एक अनपेड इंटर्न में एक 2-3 तरीके से डिप्लॉयमेंट कर ली थी, उसको 2-3 सर्विसेज थी वो करवा ली थी। एंड देन फिर उसको कहा कि नहीं अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो ये वाला एक फैक्टर होता है जो आजकल काफी लोग यूज कर रहे हैं। तो दूसरी चीज, अगर बिल्कुल भी पे नहीं है तो मोटिवेशन नहीं आता। आई बिलीव स्टूडेंट्स को मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए। जब मतलब सैलरी, अगर तुम्हारा बिजनेस है तो उस बिजनेस से रेवेन्यू, जॉब है तो जॉब की सैलरी डिसेंट मोटिवेटर होती है। मैं प्रॉपर इस चीज के फेवर में होता हूँ कि मनी इज अ मोटिवेटर, बिना पैसे के काम मत करो। तो वो मोटिवेशन मुझे थोड़ी सी लैक लगती है। हाँ, तो आई बिलीव कि अनपेड इंटर्न मतलब नहीं करनी चाहिए। स्कैम्स भी नहीं होंगे तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास मोटिवेशन रहेगी। अब अगर तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, कंसिडरिंग कुछ भी पे कर रहे हो, मतलब लाइक 5,000 भी पे कर रहे हैं, मेरे हिसाब से करना चाहिए। और जो इकलौता मेट्रिक तुम्हें देखना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि देखो अगर स्टार्टअप में इंटर्न कर रहे हो तो कोड क्वालिटी वगैरह तो कुछ नहीं होगा, ये तो भूल जाओ। कि मतलब हो सकता है एक ही फाइल में HTML और CSS दोनों जा रही है, मतलब जावा में रॉ स्ट्रिंग्स पूरी फाइल में लिखी हुई है हर जगह। तो कोड क्वालिटी तो शायद हैम्पर हो रही होगी, लेकिन तुम्हारा एक एजेंडा होना चाहिए कि वहां पे कोई ना तुम्हें मेंटोर करने के लिए कोई एक हो सीनियर इंजीनियर जिसके पास एक गुड सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो। उसने कभी किसी ऐप को प्रोडक्शन तक लेके वो गया हो, वो तुम्हारा कोड रिव्यू करे ना करे बट तुम्हारे एटलीस्ट स्किल्स को थोड़ा पॉलिश करवा पाए। और उससे तुम्हें लर्निंग हो, इंटर्नशिप लर्निंग के लिए। तो अगर कोई बढ़िया मेंटर हो, टेक लीड हो, तुम्हारा अच्छा CTO है, या तुम्हारा टीम बहुत ही कुछ एकदम क्रेजी तोड़ फोड़ हुआ है, तो वो इंटर्नशिप एक मतलब तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जैसे मतलब मेरी पहली इंटर्न पे मुझे, मतलब मैं मेरे को अभी भी याद है, मेरा फर्स्ट डे था और एंगुलर के लिए इंटर्न थी। और मुझे लगा था पहले दिन जाके कुछ तो कोड वोड लिखना होगा, प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा, ये वो करना होगा। बट उस टाइम पे जो टेक लीड थे उन्होंने मेरे को पेन एंड पेपर दिया और क्लास डायग्राम लिखने को बोल दिया। पहली बात तो फ्रंट एंड में क्लास डायग्राम, दोनों चीज साथ बैठ ही नहीं रही थी। तब मुझे रियलाइज हो कि देखो ऐसी भी चीजें होती है कि मतलब फ्रंट एंड में भी पूरा डिजाइन पहले तुम्हें करना होगा, पेन पेपर पे लिखना होगा, उनको ले जाके दिखाना होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट फ्रॉम होम। और जितनी भी इंटर्नशिप रही उसमें मेरे को एक चीज बेनिफिट रहा, मेरे मेंटर्स काफी अच्छे थे। चीजॉक में जैसे जो हमारे मेंटर थे, मतलब उन्होंने क्लीन कोड की इतनी सारी प्रैक्टिसेस हमें सिखाई, कोड रिव्यूज में मतलब फुल ग्रिल करते थे। तो ऐसा अगर तुम्हारा अच्छा मेंटोर है ना, जिससे तुम्हें 2 महीने में 3 महीने में कुछ बहुत ही क्रेजी सीखने को मिले, तो बेस्ट होगा। और ये चीज स्टार्टअप में ही हो सकती है क्योंकि MNC में टेक लीड तुम्हारे साथ साथ बैठ के काम नहीं करे। टेक लीड के पास जनरली MNC में बहुत ही नॉन टेक्निकल वर्क ज्यादा होता है कि वो मैनेज कर रहा होता है बहुत सारी चीजें। तो स्टार्टअप अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो दिस कैन बी सम द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक। अगर स्टार्टअप में मुझे ऐसा लगता है अगर तुम ही हो, लाइक इकलौते तुम बंदे हो और एक और तुम्हारे साथ है और तुम स्क्रैच से सब कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि सारी इंटर्नशिप्स तुम फिर वही वाली करने लग जाओ कि जिसमें बस तुम ही सोल वॉरियर हो, वही आप बनाते हो और 3 महीने में छोड़ देते हो। एक साल बाद तुम्हारी लर्निंग स्टैगनेंट रहेगी क्योंकि तुम्हें हर बार सिमिलर सही काम करना होगा। तो ठीक है, 1-2 बार ऐसी इंटर्नशिप कर सकते हो जहाँ पे तुम पूरा एंड टू एंड स्क्रैच करा कर दो। बट कुछ इंटर्नशिप ऐसे भी करो जहाँ पे somebody is there to guide you, a good mentor and a good technique, ये important है। And so you have to optimize for learnings. And the way to optimize for learning is look for the right team. That you are going to join the right team and they are going to help you learn and grow. If that is not happening, you have to pick between two internships. Obviously, pick the one where you will grow and you will learn from the right people. हाँ, So you have to be in the right room. There's this saying, you are average of the 5 people you spend the most time with. So optimize on those 5 people. So what do you recommend today in today's world? If I am a first year student, which language should I pick? मतलब I generally advise people to pick one of the two metrics on। एक, या तो तुम्हें बहुत तेजी से पढ़ के कुछ बिल्ड करना स्टार्ट करना है, या फिर तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तुम कॉलेज में जस्ट आए हो एंड यू आर मेंट टू प्रिपेयर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर तुम्हारा पहले वाला केस है कि मतलब लास्ट ईयर में ही स्टार्ट किया है पहला कोड लिखना लाइफ का, तो पाइथन या JS जैसी कोई लैंग्वेज पिक करो जिसमें लैंग्वेज से गेट स्टार्टेड होना बहुत ईजी है। मतलब पहला पाइथन का कोड लिखने में शायद 10 सेकंड लगेंगे,
तो इफ यू हैव टू ऑप्टिमाइज ऑन टाइम कि मेरे पास टाइम बहुत कम है लर्न करने के लिए एंड आई हैव टू गेट स्टार्टेड विद इट, और तो उस केस है पाइथन जेएस। बट जैसे कि आपने कहा कि कोई अभी बिल्कुल ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है कॉलेज फर्स्ट ईयर टाइम में, मैं रेकमेंड करूंगा कि गो विद समथिंग लाइक सी प्लस प्लस। मतलब काफी लोग इससे ऑफ हो सकते हैं कि सी प्लस प्लस ओल्ड है, ये है वो है, बट मैंने कुछ चीजें नोटिस करी हैं थ्रू आउट माई करियर जब मैं काम करता हुआ आया। जिन लोगों ने पहले कभी सी प्लस प्लस पे काम किया होता है वो दूसरी लैंग्वेजेस पे रिलेटिवली इजीली मूव कर जाते हैं। बट अगर आप किसी जावा वाले बंदे को सी प्लस प्लस का कोड दे दो, और मतलब मैं सी प्लस प्लस का कोड मतलब बबल सॉर्ट नहीं कर रहा, सी प्लस प्लस का कोड जहाँ पे मतलब एक पूरा बैकएंड का सर्वर लिखा हुआ है, वो 10-12 सर्विसेज से कम्युनिकेट करता है, इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन करी हुई है, वहां पे बंदों को बहुत फ्रिक्शन है। मतलब ये तो क्या ही लिख दिया, सी प्लस प्लस का कोड थोड़ा अभी होता है। बट उसका एक अपना फायदा है कि सी प्लस प्लस थोड़ा सा ना लो लेवल पे चीजें लेकर जाती है, कि मतलब पॉइंटर को एकदम एंड टू एंड तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने स्टैक लेवल पे चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, कंपाइलर लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग जेएस से स्टार्ट करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि जेएस कंपाइल्ड या इंटरप्रेटेड नहीं है, हाइब्रिड लैंग्वेज है, क्योंकि उनको कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब ही नहीं पता, उनको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ही नहीं पता। तो जब तुम सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हो, उसके पहला बेनिफिट है कि कंप्यूटर साइंस लेवल पे तुम्हारी डीपर अंडरस्टैंडिंग बनती है। आगे चल के मान लो तुम ओएस पढ़ते हो, तो ओएस की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं गेलवेल वगैरह, उसमें जो भी कोड स्निपेट्स तुम्हें मिलेंगे सारे सी प्लस प्लस के मिलेंगे। और इट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि बहुत ही लो लेवल जाके अगर चीजें करनी है तो सी प्लस प्लस बेस्ट चॉइस है, वरना उससे खराब ही लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा, अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ना होगा, तो सी प्लस प्लस विल बी अ गुड चॉइस। मैंने स्टार्ट सी प्लस प्लस से नहीं करा था, बट देयर वाज अ सिचुएशन, एक कोर्सेरा का कॉन्टेस्ट था जहाँ पे मुझे 3D टाइप का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था। वो सेम टू सेम कोड जावा में टीएलई देता था, और 10 डे चैलेंज था, तो लॉन्ग चैलेंज बहुत रेलेवेंट था। तो 10th TLE डे क्या में होता है for our audience? सॉरी, What is TLE for our audience? टीएलई मतलब कि तुम्हारा कोड जितने टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड। तो मैंने वो सेम टू सेम कोड को जावा से सी प्लस प्लस में माइग्रेट कर दिया, तो सेम मतलब ऑलमोस्ट सिंटैक्स सेम होता है, और वो कोड चल गया। वहां से मैंने सी प्लस प्लस पढ़नी शुरू की, कि मतलब आप सी प्लस प्लस को डिटेल में पढ़ते हैं, एंड आई रियली लव दैट। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो सी प्लस प्लस हेल्प करती है। और आगे चल के अगर तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सही कॉन्सेप्ट है, तो मेरे को अभी भी याद है आपने एक चीज सिखाई थी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में माइग्रेट करने के लिए 5 ही चीजें पढ़नी होती है। एक कि उसमें प्रिंटिंग कैसे करते हैं, एक उसमें लूप और इफ एल्स कैसे लगाते हैं, एक उसमें फंक्शंस कैसे लिखते हैं, एक उसमें कोई भी स्टोरेज एरे वेरे कैसे बनाते हैं, और लास्ट थोड़ा बहुत ऊप्स क्लास कैसे लिखते हैं। और मोस्ट लैंग्वेज टू लैंग्वेज सेम सी रहती है अंटिल उनमें तुम एकदम जावास्क्रिप्ट में आ जाओ, तो मोस्टली में सेम रहती है। तो आई बिलीव स्टार्ट विद सी प्लस प्लस, स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, कि मतलब अच्छा डीपर अंडरस्टैंडिंग तुम बिल्ड करो सिस्टम का। इससे आगे तुम्हें बहुत हेल्प होगी डीपर कॉन्सेप्ट्स को, डीबीएमएस को, नेटवर्क्स को पढ़ने में। और फिर देन यू कैन चूज लैंग्वेज, मतलब कॉलेज में ऑलरेडी सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं, जावा पढ़ाते हैं, बाद में जाके तुम प्लेसमेंट वगैरह के लिए चूज कर सकते हो। एक और रीजन है सी प्लस प्लस यूज करने का, तो मोस्टली जो तुम एमएनसीज के इंटरव्यू दोगे, मोस्टली एमएनसीज में बैकएंड में जावा वगैरह लिखी होती है, जावा लिखी होगी, पाइथन लिखी होगी, या वो आजकल गो रेलेवेंट है। तो मान लो अगर जावा लिखी हुई है और मैं इंटरव्यू में जावा से ही आंसर करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो जावा 10 साल से लिख रहा है उसको मुझसे तो जावा ज्यादा ही जावा आती है। बट देयर इज हाई लाइकली चांस जो 10 साल से जावा लिखा है वो सी प्लस प्लस का कोड देख के थोड़ा आराम से बैठा रहेगा कि यार मतलब क्या ही तो लिख रहा है, लिख लेने देता हूँ, चला तो चला। तो मैं ये चीज करता था कि जैसे लिंक्डइन का इंटरव्यू था, मैंने सी प्लस प्लस में दिया, क्योंकि मुझे पता था लिंक्डइन में जावा ही बैकएंड में है, तो मुझसे तो ज्यादा जावा जानते हो वो। तो मैं सी प्लस प्लस में देता था इंटरव्यू, और ये बेनिफिट करती थी। गूगल में तुम ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि गूगल में वो लैंग्वेज ऑफ चॉइस लेते हैं, और गूगल में बैकएंड में सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सब होता है। बट एक गुड मेजोरिटी ऑफ कंपनीज, अमेजॉन, ओरेकल, ऐसी कंपनियों तो मोस्टली जावा लिखी हुई है, और वहां के लोग सी प्लस प्लस थोड़ा भूल चुके होते हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकल हेल्प मिलती है तुम्हें, लोग ज्यादा सिंटैक्टिकल शुगर पे नहीं जाते और लॉजिक देख के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है सी प्लस प्लस का। और भी बेनिफिट है, बट मतलब इट्स ओपिनियन, मतलब हो सकता है कोई मेरे ओपिनियन से एब्सोल्युटली डिफर करे, बट मैं यही एडवाइस करता हूँ कि स्टार्ट विद सी। तो अगर किसी को जॉब चाहिए इमिडिएटली तो पाइथन जेएस स्टार्ट करो और हाँ। सीखो। बट अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो यू आर सेइंग कि सी प्लस प्लस सीखो पहले। तो लेट्स जस्ट फॉर आवर ऑडियंस, लेट्स
लेट्स ब्रेक डाउन अ स्ट्रेटेजी कि यार मैं सी प्लस प्लस सीखना शुरू करना है, तो व्हाट स्ट्रेटेजी शुड आई फॉलो? बहुत गुड। तो मतलब मेरे टाइम पे जब हम लोग पढ़ रहे होते थे, तो मोस्टली लैंग्वेज अगर तुम्हें सीखनी है, तुम्हें लैपटॉप पे पहले तो लैंग्वेज का पूरा सेटअप बनाना पड़ता था। तो वो एक 10% फ्रिक्शन होती है। अगर तुमने तुम्हारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोड रन होने लग गया है, तो वो वैसे ही 10% विन है। ऑल्सो आजकल अब Replit आ गया है, सैंडबॉक्स आ गया है, तो ऑनलाइन मोस्टली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। बट आई बिलीव सबसे पहली चीज़ तो है कि अपने सिस्टम को कंपैटिबल बना लो, कि प्लस प्लस जावा जो भी तुम सीख रहे हो वो रन होने लग जाए। उसमें ही शायद तुम्हारा एक दिन चला जाएगा कि कौन सा कंपाइलर है, इस वाले कंपाइलर में ये नहीं चल रहा, उस वाले कंपाइलर में ये नहीं चल रहा, ये सारी चीजें। सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सेटअप वाली स्ट्रैटेजी है ना, वो तुम्हें आगे भी काम आएगी। जैसे ओपन सोर्स, मतलब किसी मान लो किसी कंपनी में गए, वहां का प्रोजेक्ट सेटअप करना ही एक दिन का टास्क होता है, या कभी कभी 1 वीक टास्क भी होता है अगर सुपर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। तो पहले तो C++ या जो भी लैंग्वेज अपने सिस्टम में तुम सेटअप करो। एंड आई बिलीव कि शुरू के ही 1 महीने में ना तुम्हें बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। कि मतलब अगर पॉइंटर पढ़ रहे हैं, तो जब तक पॉइंटर पे बैठ नहीं जाएंगे और वहां से एड्रेस नहीं दिखेगा, तब तक आगे ही नहीं बढ़ रहे। ऐसा नहीं करना। गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन। इट्स लाइक कि जैसे 11th में जब कोई बच्चा जाता है, तो शुरू में ही डिफरेंशिएशन की चीजें आ जाती हैं फिजिक्स में। बट डिफरेंशिएशन एक्चुअली वो 12th में जाके डीपर समझता है। बट आगे तो बढ़ना ही है ना, 11th पार करेंगे तभी तो 12th आएंगे। तो वो वाले कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग में होते हैं। पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लो कि कैसा कैसा होता है। आप मुझसे फॉलो कर रहे हो, पोस्ट से फॉलो कर रहे हो, जैसे जैसा वहां पे लिखा हुआ है, एक बार खुद से वो चीज लिख के देते। और इसमें 1 से 2 हफ्ते पहले करो कि स्टार्ट करो कि पहले मेमोरी में कोई चीज स्टोर करनी है तो वेरिएबल्स बनते हैं। फिर उसके बाद कोई डिसीजंस लेने हैं तो इफ एल्स होता है। कोई टास्क रिपीट करना है तो लूप्स होते हैं। कोई कोड रिपीट नहीं करना है तो फंक्शंस होते हैं। ऐसे करके कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे। तो उस 2 हफ्ते के आसपास अगर तुम इस पे स्पेंड करते हो, तो तुम्हें एटलीस्ट आंखों से देख के समझ में आएगा कि अच्छा, ऐसा कुछ तो होता है। अभी तुम शायद खुद से ना लिख पाओ, बट एटलीस्ट कोड देखने के बाद तुम्हें एलियन फील हो। कुछ लोगों को मतलब जैसे मतलब मेरे पापा को अगर मैं कोड दिखा दूं एक बहुत बड़ा सा, तो उनको एलियन फील होता है कि ये क्या लिखते हैं, मे बी स्कैम है शायद ये सब। बट तुम्हें एलियन फील नहीं हो। उसके बाद एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जो मैंने खुद अप्लाई करी थी, कि तुम छोटी छोटी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, हैकर रैंक है, अब तो लीड कोड आ गया, द मोस्ट रेलेवेंट वन। उस पे जाके ना सिंपल सिंपल इजी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कि 2 नंबर्स का एवरेज निकालना है, नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, पावर निकालनी है किसी फंक्शन, ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक एजेंडा होता है। सो आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मसल मेमोरी, कि अगर तुमने लेट्स से 50 इजी क्वेश्चंस बनाए जिसमें फॉर लूप यूज होता था, इफ एल्स यूज होता था, तो उसके बाद ना फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स तुम्हारी मसल मेमोरी में फीड हो जाता है। जब तुम बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन लिखोगे किसी प्रोजेक्ट की, तो उस टाइम तुम्हें नहीं सोचना पड़ेगा कि अच्छा फॉर का लूप 0 से चलाओ कि 1 से चलाओ, n तक लेके जाओ, n-2 तक लेके जाओ, कैसे लेके जाओ। सो योर मसल मेमोरी फीड्स दैट कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ही कोड वन, इट विल ऑटोमेटिकली राइट 50-60 क्वेश्चंस करने के बाद। तो आई बिलीव दिस शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, कि तुम पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते थोड़ा सा देखो कि सिंटैक्स में कैसे लिखता है, फॉर लूप ऐसे बनता है, ये चीज ऐसे बनती है। और उसके बाद 60 70 80 इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल है या नहीं है, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन होता है 3 साइड्स गिवन है, बताओ कि इससे ट्राइंगल बनेगा या नहीं। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लगाओ। कोई पैटर्न है, पैटर्न बनाओ। ठीक है, वर्ड्स, वर्ड प्रिंटिंग की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लीड कोड पे तुम्हें बन जाएंगी कि इजी से सॉर्ट कर लो। और उससे लो, इससे तुम्हारे लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े स्ट्रांग होने लग जाएंगे, वो मसल मेमोरी में आने लग जाएंगे, और तुम्हारी थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। एंड देन यू स्टार्ट गोइंग, मतलब और इस एक्टिविटी में तुम्हें लग जाएगा महीना 2 महीने भी लग सकते हैं। कि मतलब वो इजी प्रॉब्लम है जो मैं बोल रहा हूँ, वो शुरू में हार्ड ही लगेंगी, बट धीरे धीरे समझ में आएगा, ये तो मतलब किक ऑफ था। एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग अ डीपर डाइव कि अच्छा, अब हमने एरेस के बारे में पढ़ा था, मैंने एरेस के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं। अब देखते हैं एरेस इंटरनली कैसे चलती है। और एक और चीज होती है, लोग ना थोड़ा बोर होने लगते हैं, तो मेरे को एक चीज लगती है कि जैसे कोई भी तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, एरेस पढ़ रहे हो, लूप्स पढ़ रहे हो, उसको देखो कि तुम्हें इवेंचुअली क्या बनना है। इवेंचुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो इवेंचुअली इंजीनियरिंग में ये चीज कहाँ यूज होती है। जैसे मैं एक क्लास ले रहा था, वहां पे हमने इफ एल्स से स्टार्ट करी चीजें। तो अब इफ एल्स पूरे प्रोडक्शन कोड बेसिस में सबसे ज्यादा लिखा हुआ कोड होता है।
और इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल लिया जा सकता है कि अगर नेटफ्लिक्स पे मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मुझे एक व्यू दिखेगा, नहीं तो दूसरा व्यू दिखेगा। ये फेल्स सिंपल एप्लीकेशन। तो बंदों को लगता है अच्छा, मतलब हम इसको अगर एक बारी सही से पढ़ लेंगे ना, तो आगे चल के कल को नेटफ्लिक्स में काम करना पड़ा, तो ये यूज़ होगा और एक्चुअली यूज़ होता है। मतलब हर चीज़ का यूज़ केस होता है। तो यूज़ केस ड्रिवन चीज़ें पढ़ो और धीरे-धीरे लैंग्वेज के इंटरनल पॉइंटर्स पढ़ना शुरू किया तुमने। अच्छा, नॉर्मल पॉइंटर क्या होते हैं, स्मार्ट पॉइंटर क्या होते हैं, एरेज़ पढ़ी, 2D एरेज़ पढ़ी। इससे अपनी जर्नी स्टार्ट करो और देन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव विल कम अप कि मतलब अच्छा आप जहाँ से डीपर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स हैं, एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, तुम्हें वो पढ़ने शुरू करने हैं और उनको उन पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने के बाद देन यू स्टार्ट लुकिंग एट एप्लीकेशन ड्रिवन थिंग्स कि आप जो स चीज़ें पढ़ ली, उसका यूज़ करके कुछ बना भी पाएँ कि मतलब इवेंचुअली कुछ बन जाए। तो दिस शुड बी द आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से सबके पाथ अलग हो सकता है, बट स्टार्टिंग पॉइंट आई बिलीव अगर ऐसा रहेगा, तो लॉट ऑफ पीपल विल गेट बेनिफिटेड आउट, ये मुझे लगता है। तो दिस शुड बी समथिंग दैट आई वुड हैव स्टार्टेड नाउ। अगर मैं खुद की सारी एडवाइस खुद पे अप्लाई करके शुरू से शुरू करना चाहूँ, तो दिस विल आई वुड से। इनफैक्ट मुझे एक बार याद भी है, यू आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू लर्न गो और समथिंग, और आप खुद भी लीड कोड पे मतलब वीकली कुछ क्वेश्चंस बनाने के सोच रहे थे कि लीड कोड पे कुछ वो से क्वेश्चन बताएंगे तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बन जाती। देन यू टेक डीपर टाइम। हमारी एक बड़ी बात भी हुई। सो आई बिलीव दिस शुड बी समथिंग दैट इज टाइम इन द स्टार्टिंग। Okay, so just like सेटअप की बात करते हैं एक बारी। तो which machine should a new dev should use? लिनक्स करनी चाहिए कि मैक ओएस करना चाहिए कि विंडोज करनी चाहिए? एनी थॉट्स ऑन दैट? अगर बिल्कुल ही नई मशीन खरीद रहे हो, बिल्कुल ही हाँ। ब्रांड न्यू, मतलब आपने पैसे दिए हैं कि जो खरीदना है खरीद लो, गेट एन उबंटू मशीन। गेट एन उबंटू मशीन। मतलब आई नो कि विंडोज भी ठीक है, मतलब आई कांट से मच, बट जब अगर करना और बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो ऑप्शन है, तो गेट एन उबंटू मशीन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वरना घर की जो भी पुरानी मशीन है, पहले तो उससे शुरू कर लो। विंडोज है तो विंडोज से कर लो, मैक भी कर सकते हो, बट अगर मेरे से रिकमेंडेशन मांगोगे तो सिंपल उबंटू। उसके दो रीज़न है, पहला चीप होती है क्योंकि उबंटू भी लाइसेंस फी नहीं लगती। तो विंडोज़ खरीदोगे तो 7-8 हज़ार रुपये तो लैपटॉप की कॉस्ट में लाइसेंस का ही होता है। और फिर विंडोज़ में वायरस इश्यूज़, गेम्स वगैरह टच जाती हैं तो डिस्ट्रैक्शन इश्यूज़, स्लो हो जाता है थोड़ा, तो वो इश्यूज़। उबंटू में कोई इश्यूज़ नहीं। जैसा उबंटू डे 0 पे चलता है, सेम टू सेम वैसा ही डे 365 पे चलना। तो वो जो जर्नी कंसिस्टेंट लीनियर ग्राफ की है, वो उबंटू में बेस्ट होती है। दूसरा, जब हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, कंपनीज में जाएंगे, 99% ऑफ द टाइम जो भी प्रोडक्शन सिस्टम्स आप देखोगे, सब उबंटू पे डिप्लॉयड होते हैं। किसी भी कंपनी के आप देखो, सब उबंटू या सिमिलर लिनक्स मशीन पे डिप्लॉयड होते हैं। तो और एक बार तुम्हें उबंटू आता होगा, तो कल को अगर मैक पे शिफ्ट करना होगा तो बहुत आसान होगा। मतलब मैंने कभी खुद से कुछ मैक के लिए स्पेसिफिकली नहीं सीखा। उबंटू में जो कुछ होता था, सब कुछ मैक में हो सकता है, प्लस अ फ्यू मोर थिंग्स। तो कल को मैक पे शिफ्ट करना आसान हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली, विंडोज में भी अब लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के सपोर्ट है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, जिसमें अब तुम विंडोज के अंदर लिनक्स कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट देयर इज नो लिनक्स सबसिस्टम फॉर विंडोज जिसमें तुम उबंटू में विंडोज कमांड यूज करते हो। तो कुछ रीजन होगा भाई इसका। तो स्टार्ट विद मे बी उबंटू। अगर ऑप्शन नहीं है तो स्टार्ट विद विंडोज। अगर तुम्हारा पूरा पर्सनल विंडोज है तो फॉर्मेट कर दो विंडोज और उबंटू डाल दो, ज़्यादा लाइफ इजी रहेगी। अगर वो नहीं कर सकते तो गेट विंडोज लो, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है गिट बैश। गिट बैश डालो, उससे तुम्हारा सारा लिनक्स वाला काम विंडोज में होने लग जाएगा। एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड। एक कोई टेक्स्ट एडिटर डाल लो, VS Code डाल लो। पहले सबलाइन बहुत रेलेवेंट था जब हम लोग 16-17 में करते थे। अब आजकल VS Code काफ़ी काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, वो ले सकते हो। अगर इतना भी एफर्ट नहीं करना और चीपर जाना है तो क्रोमबुक ले लो। क्रोमबुक पे ब्राउजर चलता है और रेफिनेट और कोड सैंडबॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो तुम्हारे लिए ब्राउजर पे सारी कोडिंग कर देंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर तुम गूगल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करोगे तो तुम्हें ब्राउजर पे ही सारा कोड लिखा होता है। यू नेवर सेट अप एनीथिंग ऑन योर लोकल। तो दैट इज अ प्रीटी गुड इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस, तो तुम वो भी कर सकते हो। अगर तुम्हें इतना ज़्यादा सिस्टम्स में ज़्यादा नहीं करना, विंडोज़ में भी तुम सीधा ब्राउजर में कोड करना स्टार्ट करो। दैट शुड बी अ गुड वे इन बिल्डिंग योर टीम 4 hours। ओके, सो टेक अवे जो है वो यूज़ करो।
नहीं तो उबुंटू ले लो, स्विमिंग सीखनी है तो सीधा पानी में कूद जाओ, हाँ तो भाई। उबुंटू में कूदना इज़ द बेस्ट वे। और बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पे इतना ध्यान दो कि वो आपकी सेकंड नेचर बन जाए, वो आपके मसल मेमोरी में चले जाएं। मतलब अगर मुझे फॉर लूप लिखना है तो मुझे सोचना ना पड़े, मुझे कंडीशनल्स इफ एल्स लिखना है तो सोचना ना पड़े, मतलब प्रैक्टिस कर लो इतनी कि आपकी बेसिक्स सेकंड नेचर बन जाए। सो दैट्स द एडवाइस, एंड उसके बाद यू कैन वेंचर आउट टू डू समथिंग एल्स, कि वेब डेवलपमेंट कर ली, ऐप डेवलपमेंट कर ली, अकॉर्डिंग टू द गोल्स जो भी हैं लाइफ में, इतना या टाइम है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, हाँ, या इतना टाइम है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर ली, सीख लिया अभी। सीपी कर ली। तो ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट कोडिंग, कि यार अब मुझे वेब डेवलपमेंट सीखनी है या मुझे ऐप डेवलपमेंट सीखनी है, मेरे पास कुछ आइडिया है, तो मैं फ्रेमवर्क कैसे चूज़ करूँ? कि मैं फ्रंट एंड में रिएक्ट सीखूं, कि मैं एंगुलर सीखूं, कि मैं बैक एंड में जेंगो सीखूं, रेल सीखूं, कि मैं सी प्लस प्लस पे बैक एंड बना दूं या गो पे बना दूं बैक एंड, मेरे को डेटाबेस भी सीखना है। तो हाउ डू आई, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ हो जाती है जब आप रियल वर्ल्ड कोई एक ऐप बनाते हो, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी पिक करने की, पहली बात। फिर होगी कि कैसे सीखें हम, हाउ डू आई लर्न दिस, हाउ डू आई लर्न वट एवर हैव पिक्ड after I'm sure I have learned enough C++ now कि I can write code very easily. It's my second nature to write code, as similar as speaking English or speaking any other language that I speak. So now how do I venture into that, picking a framework and building something? आई बिलीव कि फ्रेमवर्क का चॉइस या लाइब्रेरी का चॉइस इस बेसिस पे ही होना चाहिए। पहली फ्रेमवर्क या पहली लाइब्रेरी का चॉइस इस बेसिस पे होना चाहिए कि वो कितना ईजी है और कितना रेलेवेंट है। ठीक है, मैंने इसी बेसिस पे अपनी चॉइस ली थी रेल्स। मैं अभी भी जानता हूँ कि 2016 एंड ईयर में मैं देख रहा था कि मतलब नेक्स्ट ईयर से मैं वेब स्टार्ट करूंगा। सो आई वाज डूइंग रिसर्च। तो मैं उस टाइम मतलब कोरा और स्टैक ओवरफ्लो पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े थे, एंड एवरीबॉडी वाज ऑन लाइफ की मतलब लाइफ में अगर चिल चाहिए तो रेल्स, सो रेल्स। बट अभी दैट माइट नॉट बी ट्रू बिकॉज अब रेल्स के कंपैरिजन में और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए। और दूसरी चीज एक इंडस्ट्री एस्पेक्ट भी देखना होता है कि इंडस्ट्री में क्या चीज रेलिवेंट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे रेल्स पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कहीं पे जैंगो की हायरिंग होती थी, सो आई वाज एबल टू कन्विंस द इंटरव्यूअर भाई जैंगो और रेल्स में कोई फर्क नहीं है, मैं रेल्स जानता हूँ एंड टू एंड। जैंगो में 3 दिन में स्टार्ट कर दूंगा, मतलब 3 दिन में दूसरी पीआर जाएगी मेरी, पहली पीआर तो पहले दिन ही कर दूंगा, तीसरे दिन एक ढंग की दूसरी पीआर डाल दूंगा मैं। इतना कन्विंस मैं कर देता था। तो बट अब आई बिलीव क्योंकि रिसेशन है, थोड़ा टाइट सिनेरियो है, तो आई बिलीव इस बेसिस पे भी चॉइस लेना चाहिए कि किसकी जॉब्स है। तो देखो फ्रंट एंड में तो हैंड्स ऑन देयर शुड बी रिएक्ट और रिएक्ट बेस्ड एनीथिंग। तो अगर तुम नेक्स्ट पिक कर रहे हो, नेक्स्ट इज समथिंग लाइक जो छोटे स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा पिक करना शुरू कर चुके हैं। फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, थोड़ा बहुत बैकएंड लिख सकते हो, डेटाबेस वगैरह इंटीग्रेट हो जाता है। बट आई स्टिल बिलीव कि नेक्स्ट का पेनिट्रेशन बिग टेक में भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बेटर वुड बी कि यू कैन स्टार्ट विद रिएक्ट एज द फ्रंट एंड। अगर तुम अर्ली स्टेज से टाइपस्क्रिप्ट लिख सकते हो तो ये सीखो। उसका एक रीज़न है क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग एक तो प्लेन जेएस और पाइथन लिख के आते हैं और गलती से उनको जावा का बैकएंड लिखने को मिलता है जिसमें हर चीज़ की क्लास बनती है, और उनको आदत होती है सीधा वेरिएबल में ऑब्जेक्ट पकड़ लेने की, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती कि क्लास क्यों बना रही है हर चीज़, इंटरफेस भी बना रहा है हर चीज़ का। तो अगर टाइपस्क्रिप्ट से के साथ रिएक्ट सीख सकते हो तो दैट शुड बी गुड। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट सीखना कोई प्रॉब्लम है, बट फिर ढंग से पढ़ो ताकि कल को टेक्स्ट टाइम माइग्रेट करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। एंड बैकएंड में आई बिलीव कि इफ यू कैन पिक अप ईदर नोड और जावा बेस्ड समथिंग, तो नोड में एक्सप्रेस है, फास्टिफाई है, इफ यू वांट टू बिल्ड लाइक सुपर फास्ट एप्स देयर इज फास्टिफाई नाउ। बैक जावा में देयर इज स्टैंडर्ड स्प्रिंग बूट। बट अगर मुझे किसी को कहना हो कि को कुछ पिक करो तो आई विल आस्क देम टू पिक मॉन्स्टैक। इफ इजी है आज के टाइम में लर्न करना, इजी दोनों पर्सपेक्टिव से, पढ़ने में भी आसान है और इनफ रिसोर्सेज है, मतलब कैपेसिटी नहीं है रिसोर्सेज की कि मतलब इसको तो सीख ही कैसे पाए। मतलब मैं भूल गया उस प्लेटफॉर्म का नाम, जब मैं रेल सीख रहा होता था, तो एक एक वेबसाइट थी जो रेल्स 3 पे सारे ट्यूटोरियल डालती थी एकदम, रेल्स कास्ट। रेल्स टास्क करके। हाँ, उसके अलावा रेल्स का मतलब ऑनलाइन बहुत क्रेजी कुछ ट्यूटोरियल नहीं मिलते थे। वो अभी भी शायद है, मतलब अब तो मैंने चेक नहीं करा होगा बहुत टाइम से, बट अभी भी वो हो। बट नोड के साथ मतलब मॉन के साथ ऐसा नहीं है, मॉन के इनफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे। काफ़ी सारी वीडियो लेक्चर मीडियम पे भर भर के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और स्टैक ओवरफ्लो पे एक बड़ी कम्युनिटी है। तुम्हें अपना पहला इंटर्नशिप पेनिट्रेशन इजीली मिल जाएगा, तुम्हें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना है, इजीली कर पाओगे। तो मॉन स्टैक शुड बी गुड।
अगर तुमने अपनी कोडिंग जर्नी जावा टाइप से स्टार्ट करी तो रिएक्ट फ्रंट एंड और जावा बैक एंड में कर सकते हैं। इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलेंगी इक्वली। मतलब स्प्रिंग बूट में मैंने काम किया है, स्प्रिंग बूट भी इक्वली आसान है। अनटिल अनलेस तुम बस एक बार 10-12 घंटे उसके साथ स्पेंड करो, स्प्रिंग बूट इज नाउअडेज इक्वली इजी ऑल टुगेदर। तो इन दोनों में से तुम कोई भी एक पिक कर सकते हो, आई थिंक इन दोनों में से कोई भी एक पिक कर सकते हो। अगर मैं किसी को एडवाइस करूँगा, अगर बहुत ही शॉर्टकट में जा रहे हैं तो नेक्स्ट पिक कर लो। नेक्स्ट में रिएक्ट पे फ्रंट एंड हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्सप्रेस जैसा टाइप का ही बैक एंड होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और अगर तुम्हें डेटाबेस पिक करना है, आई बिलीव पिक आ रिलेशनल डेटाबेस। मतलब देयर आर पीपल जो मतलब मोंगो पढ़ के आते हैं और मतलब उनको ये पता ही नहीं होता है कि ज्वाइन कैसे चलता है, क्या होता है। उनको ये रियलाइज नहीं होता कि इंडस्ट्री में मेजॉरिटी डेटाबेस आज भी रिलेशनल है और तुम्हें क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। मतलब PL/SQL का कंसेप्ट नहीं पता होता है लोगों को कि डेटाबेस की पूरी हजार लाइन की स्क्रिप्ट्स होती हैं जिस पर पूरा बिजनेस लॉजिक होता है कभी कभी। SQL डेटाबेस को एक पिक करना चाहिए तुम्हें, जैसे MySQL इजी फ्री है, इजी टू सेटअप है, इजी टू गेट स्टार्टेड है। और डिप्लॉयमेंट्स अगर तुम पढ़ रहे हो तो AWS, मैं आज भी AWS ही जानता हूँ। मैं GCP नहीं पढ़ा सकता किसी को, या GCP का मतलब मुझे 1 घंटा लग जाएगा शायद पहला सर्वर डिप्लॉय करने में अभी भी। बट AWS में मैं 5 मिनट में कर लूँगा। तो AWS should be the cloud stack that you can pick मेरे हिसाब से। दिस वुड बी माय रिकमेंडेशन। आजकल वैसे लोग Go वगैरह भी पढ़ने लग गए हैं, बट उसकी एक अपनी कम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो आई बिलीव Mon stack और React plus Spring Boot stack should be something to go with. Nice. So for our audience, MERN stack is learning four things: a database, MongoDB. Express.js is a framework based on Node.js language. Then you can learn the R is for React, the front-end framework, and Node is for Node. You can also do this in TypeScript. You can do MongoDB Express and React in TypeScript instead of Node.js. So how did teaching help you? Do you still teach? Yes, I make sure that I very consistently and regularly teach. उसका 2 रीजन है। एक, आई स्टे इंटरव्यू रेडी। मैं पढ़ाता हूँ, मतलब एक बैच चल रहा था तो उसमें बच्चे पूछ रहे थे कि और क्वेश्चंस करवा दो DSA के, ये वो। तो मैं कहा देखो मैं तो करा दूंगा, उसमें फेसबुक लंदन मैं ही जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तो सॉल्व करना पड़ता है। तो आई बिलीव टीचिंग से थोड़ा सा रेलेवेंस बनी रहती है कि जो लेटेस्ट टेक है तुम वो पढ़ा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग रेगुलरली कर रहे हो। तो थोड़ा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ऐसा नहीं होगा कि मतलब एकदम से मुझे स्क्रैच से सब पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्री में लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि 3 साल अगर काम कर लेते हैं फिर उनसे लिंक्स रिवर्स नहीं होती जल्दी। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, ये एक बेनिफिट है। दूसरा, फुल टाइम जॉब करते टाइम हमेशा आपको अपना मन लायक स्टैक नहीं मिलेगा। कि मतलब अगर मुझे मान लो किसी टाइम पे पाइथन में ही कोड लिखना है, अब मैं और कुछ नहीं लिखना चाहता, लेकिन फुल टाइम जॉब में तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो पढ़ाते हुए आई एम वेरी फ्री टू राइट वॉट एवर टाइप ऑफ स्टैक आई वॉन्ट। और आई ट्राई टू मेक श्योर कि मतलब पढ़ाते हुए भी पिक अ प्रोजेक्ट जिसमें कोई इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बारी मैं एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाना, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है बुकिंग वाला फैक्टर कि 2 लोगों ने साथ में बुक कर दिया तो वो कैसे हैंडल करेगा, राइट। वैसे ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटी सिस्टम में कैसे बनती है। तो आई ट्राई टू मेक श्योर कि कोई प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो। कभी प्रोजेक्ट को मोनोलिथ से बना दिया, कभी माइक्रो सर्विसेज से बना दिया। तो इससे क्या होता है, थोड़ा जो रेलेवेंट स्टैक है वो दिमाग में रहता है। और जो मर्जी पढ़ाओ, जो मर्जी करो, वो एक चीज़ रहती है। ऐसे एकदम नाइटमेयर नहीं लगता कि किस दिन प्रिपेयर करना पड़ा सा। और मतलब फन लगता है मुझे टीचिंग। मतलब मुझे शुरू से टीचिंग का शौक था। मतलब मैं कॉलेज में भी क्लब्स में पढ़ाता था। उसके बाद मतलब आई स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम टीचिंग ऑल्सो। तो मतलब मुझे खुद भी बढ़िया लगता है कि पीपल आर एबल टू नो कि मतलब मैं क्या और इनसाइट शेयर कर सकता हूँ जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तो आई ट्राई कि मतलब मैं कोई भी क्लास प्रिपेयर करता हूँ तो मैं उसमें एक चीज़ इंश्योर करता हूँ कि अगर कोई बच्चा है जिसको ये सारी चीज़ें आती होंगी तो भी उसके लिए एटलीस्ट एक ऐसी चीज़ हो जो वो नहीं सीख के जाता है। तो मतलब मैं कोई ऐसा फैक्ट ढूंढूंगा पूरा एक दिन पहले बैठ के, या कुछ ढूंढूंगा जो मुझे लगेगा कि ये तो पक्का किसी को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल तो मतलब ये वाली चीज़ मैं करता हूँ, इससे अपना एक किक आता है। और लाइव पढ़ाना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि लाइव डाउट्स सॉल्व करना एक अलग ही थ्रिल होता है। क्योंकि बच्चे तो ऐसे कुछ भी पूछते हैं, मतलब
आउट ऑफ द बॉक्स। अभी उन्हें रिएक्ट में प्रोजेक्ट सेटअप करना नहीं आता है, वो सीधा प्रोडक्शन पे पूछते हैं कि बिल्ड क्या होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक और रीजन की वजह से मेरे को पढ़ाना सही लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडस्ट्री में ऐसा है कि लोग काफी सारी चीजें बिल्ड कर सकते हैं, बट उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मतलब अगर मैं किसी से पूछता हूँ ना कि बिल्ड सिस्टम क्या होता है, हम एनपीएम बिल्ड करते हैं, जावा में बिल्ड करते हैं, प्रोजेक्ट ग्रेडल बिल्ड करते हैं, बिल्ड होता क्या है, बिल्ड का मतलब क्या है, बिल्ड क्यों करना पड़ता है। तो वो वाली चीज ना बनने कहेंगे प्रोजेक्ट चलाने की। तो ऐसी चीज के आंसर मेरे को देना सही लगता है कि मतलब अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसी चीज के आंसर दे पाऊँ कि मतलब जो फंडामेंटल लेवल पे जाके बताइए कि सब बिल्ड का ही मतलब है। कल हो सकता है तुम अपना खुद का बिल्ड सिस्टम बनाओ, मेनली समथिंग लाइक दैट। तो दैट्स व्हाई आई लाइक। तो अभी किसी को रीच करना हो संकेत को कि सो वेयर कैन वी रीच यू? मतलब अभी मेरे ट्विटर पे डीएम सिग्निफिकेंटली खाली रहते हैं। तो ट्विटर पे मेरा स्पैम नहीं हुआ है अभी तक। तो ट्विटर इज समथिंग दैट एवरीबॉडी कैन रीच आउट। और इंस्टा और लिंक्डइन पे तो स्पैम हो चुका है, बट स्टिल आई ट्राई टू आंसर ऑन लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे भी पीपल कैन रीच आउट। मेरा नंबर लीक है। तो क्या होता था कि मैं क्लास लेता था और आईफोन में कभी भी बेल आती थी या मैसेज आता था ना, तो कभी मेरे किसी दोस्त का नंबर या कभी मेरा ही नंबर किसी वजह से ऊपर पॉपअप हो जाता था। तो मेरा नंबर वैसे ही शायद ठीक मिनट है, तो बच्चे डायरेक्ट ही मैसेज कभी कभी कर देते हैं। डिस्कॉर्ड पे लाइक पीपल रीच आउट टू मी ऑन डिस्कॉर्ड, ज़्यादा किसी कॉमन डिस्कॉर्ड ग्रुप है। तो आई ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल, जितना फुल टाइम जॉब के बाद और पढ़ाने वढ़ाने के बाद और घूमने फिरने के बाद टाइम बचता है, ट्राई टू आंसर। नाइस, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। हाँ, मतलब काइंड ऑफ बढ़िया लगता है बातें करना पहले तो इससे। अच्छा, डे टू डे लाइफ क्या रहती है आपकी कंपनी में? वेर यू वर्क, व्हाट इज द कल्चर, व्हाट इज योर डे टू डे लाइफ? तो अभी अगर एज ऑफ नाउ मैं मोस्टली घर से काम करता हूँ डे टू डे उसमें। मैं ऑफिस नहीं जाता। आ, तो थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड रहती है मेरी। मेरे को ऑफिस जाना इसलिए नहीं पसंद क्योंकि 1 घंटा ऑफिस पहुंचने लगता है, 1 घंटा आने लगता है। जाने से पहले उसकी प्रिपरेशन करने में 45 मिनट खराब होते हैं, और आने के बाद मेरे को 45 मिनट की नैप चाहिए। तो मेरे 3 घंटे ऐसे टाइड आउट हो जाते हैं ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि 3 घंटे में सो ही लूँ ना, सीधा मतलब सो ही जाता हूँ। तो मैं घर पे रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब वर्क फ्रॉम होम थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बट ओवरऑल अगर मतलब एक फुल डे की बात करें, सो आई ट्राई टू वेक अप अराउंड एट 9:50 9:30। पहले मेरा बहुत खराब था शेड्यूल, मैं 12 बजे उठता था, अब मैं 9 बजे उठ जाता हूँ। हाँ, और आई स्टार्ट माई डे एट 10, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करके वॉक वॉक करके कुछ सामान लाना है तो नीचे से ला दिया। 10 बजे आई स्टार्ट माई डे। तो मेरी मीटिंग्स होती हैं अराउंड 12। तो मीटिंग से पहले अगर मैंने कुछ काम नहीं करा है तो आई ट्राई टू मेक श्योर कि 1 डेढ़ घंटे में वो मैं काम कर दूँ। कोई पीआर थी जिस दिन लास्ट डे मैंने रिव्यू रेज करा था, उस पर रिव्यू आ गया है, तो आई ट्राई टू अपडेट द पीआरस एज गुड एज पॉसिबल। किसी और की पीआर रिव्यू करनी है तो वो पीआर रिव्यू कर देता हूँ मैं। एंड देन 12 o'clock वी हैव अवर क्विक स्क्रम, क्योंकि मेरी यूएस टीम है तो मेरा लेट नाइट स्क्रम होता है 7। और फिर 12 बजे की मीटिंग के बाद आई ट्राई टू कीप माई डे एज लेस मीटिंग्स एज पॉसिबल। उसमें मैं 2-3 चीज़ें करता हूँ कि अगर किसी अगर कोई ब्लॉकर है तो पोस्ट लंच उस ब्लॉकर से रिलेटेड मीटिंग्स रखता हूँ। बिफोर लंच में जनरली नहीं रखता, क्योंकि बिफोर लंच जो अपना कोडिंग एफर्ट है वो कर लेता हूँ। और अगर कोई ब्लॉकर्स है तो पोस्ट लंच उसकी मीटिंग्स आता हूँ। जो सीनियर इंजीनियर्स हैं जिनको रिलेटिवली मोर कॉन्टेक्स्ट है सिस्टम का, उनके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ कि मतलब क्या ब्लॉकर्स हो सकते हैं, किस वजह से कोड फट रहा है, कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ नहीं चल रही है। आ, अगर कोई नया फीचर बनना है, अभी तो जैसे आई एम रिलेटिवली न्यू इनटू द सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बट जब जैसे मैं गूगल में था तो मोस्टली हर फीचर के लिए वी हैड टू राइट डिजाइन डॉक्स। हर मतलब कुछ बटन भी लगेगा तो उसका एक 15 पेज का डिजाइन डॉक बनता था, क्योंकि वो बटन लगाना ही इतना कॉम्प्लेक्स होता था पूरे गूगल लिस्ट। तो वी यूज्ड टू मतलब आई यूज्ड टू स्पेंड 2.5 hours at least per day almost in writing the design doc, क्योंकि गूगल में ऐसा होता था कि हर डिजाइन डॉक की डिजाइन मीटिंग होती थी। तो वो डिजाइन मीटिंग 2 हफ्ते बाद होती थी, पहले पता लग जाता था अब ये 2 हफ्ते में डिजाइन डॉक बनाना है। तो हर दिन 3 से 4 घंटे डिजाइन डॉक को लिखने में जाते थे। अब वैसे वो पायलट वगैरह आ गया है, जीपीटी आ गया है, तो इररिलेवेंट मतलब रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन वो जल्दी लिख देता है। बट पहले मतलब पूरा टाइम इस पे देना होता था। एंड देन बाकी 5 और 6 तक मैं अपना
जो भी पेंडिंग कोडिंग वर्क है वो खत्म कर लेता हूँ, कोई मीटिंग है वो कर लेता हूँ। बहुत सारी नॉन टेक्निकल चीज़ें भी करनी होती हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है या कोई नई डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, मॉनिटरिंग करनी पड़ जाती है कभी कभी। तो अगर कोई मान लो ऑन कॉल चल रहा है, कोई डेडिकेटेड मॉनिटरिंग है, तो मैं मिड डे पे एक बार ही 1 घंटा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ मॉनिटरिंग में कि पाइपलाइन सही से चल रही है, चल रही, कोई डिप्लॉयमेंट सेट की फटी है या नहीं, काइंड ऑफ लाइक दैट। 5 बजे के बाद आई एम फ्री। तो 5 बजे से 10 बजे तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ। कहीं कुछ पढ़ा रहा हूँ किसी को तो पढ़ा दिया, बाहर घूमने चले गए, चिल चिल फोन चिल सकता है। और 10 बजे के आसपास मेरी एक और मीटिंग होती है विद द यूएस फोक्स। तो 10 बजे के आसपास मैं वो मीटिंग करता हूँ, वो 1 डेढ़ घंटे चलती है, तो 11:30 हो जाते हैं कभी कभी। और अगर मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही है तो मैं उस टाइम, अगर मुझे कुछ यूएस वालों के साथ मिलाप करके कुछ काम करना है तो मैं रात को निपटा लेता हूँ। तो मैंने लेट नाइट मीटिंग से मुझे ऐसे फिर प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कर लेता हूँ। एंड देन आई जस्ट स्लीप। इस बीच में घूमना फिरना सब कुछ हो जाता है। जिम ट्राई कर लेता हूँ कि कभी जिम चले जाओ, मतलब हफ्ते में अगर 2 दिन जाता हूँ तो मतलब सही फील होता है। ट्राई वैसे करता हूँ कि 4 दिन हो जाए, बट फिर अगर कोई ट्रैवल आ जाता है कहीं का तो फिर वो 10 दिन इतना गंदा खाने को मिलता है कि फिर वो पहले खुद को न्यूट्रल करने में टाइम लग जाता है। तो दिस इज माई एक्सपेक्टेड डे कि कुछ थोड़ा बहुत जो कोड इम्प्लीमेंटेशन हैं, कोड रिव्यूज हैं, डिज़ाइन टॉक्स हैं, मीटिंग्स हैं और लॉकर डिस्कशन है, इसमें मेरा मोटा मोटा सारा टाइम जाता है। कौन सा सिस्टम यूज़ करते हो कोडिंग के लिए अभी, राइट नाउ, फॉर योर वर्क, फॉर ऑफिस वर्क, फॉर ऑफिस वर्क? विंडोज़ और पर्सनल? मैक मैक पर्सनल मैक। आईडी कौन सा यूज़ करते हो? अभी तो आई डेडिकेटेडली यूज VS Code for 90% stuff. Any Java related stuff I do on in Python. Any C Sharp related stuff I do on Visual Studio. तो एक .NET का ID है, वो Visual Studio पे चलता है। बट अगर .NET नहीं लिखना है और Java नहीं लिखनी है तो एंड टू एंड सब VS Code से चलता है। Python, नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखनी है, बैश स्क्रिप्ट लिखनी है, SQL लिखना है, सब VS Code पे। वर्क सेटअप कैसा दिखता है? सिंगल स्क्रीन है, डबल स्क्रीन है, एक्सटर्नल लाइक मैकेनिकल कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक पैड है? तो I have a mechanical keyboard kind of, एक डेडिकेटेड माउस है। डुअल स्क्रीन सेटअप आई नॉट सर इसको कह सकते हैं नहीं कह सकते। तो एक आई हैव अ 32 इंच मॉनिटर और एक लैपटॉप की स्क्रीन है, दोनों ओपन रखता हूँ मैं। आई मीन एक माइक है जस्ट फॉर मेकिंग, क्योंकि मेरे रूम में बस मेरी टेबल और चेयर है, तो कभी कभी एको ना करेगा बस, इसलिए आई हैव अ माइक। और इसके अलावा आई कीप माई हेडफोन्स, इधर एयरपॉड्स और बिगर हेडफोन्स विथ मी, एक स्पीकर रखे हुए हैं मैंने बस। That's my simple fix setup, but हाँ, मैकेनिकल कीबोर्ड है मेरे पास। किस किस एनवायरनमेंट में कोड करना प्रेफर करते हो, लाइक एकदम बंद रूम में अकेले बैठ के, या ओपन स्पेस में? और वर्क, वो तो बता ही दिया कि यू प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं, ऑफिस। तो तो व्हाट यू प्रेफर राइट नाउ? आई जनरली मेक श्योर कि मैं अकेले बैठ के कोड कर रहा होता हूँ। मतलब ऐसे ओपन में जाके मतलब ओपन बाहर बैठ के मेरे से कोड नहीं होगा, बिकॉज आई प्रेफर कि मतलब सारी रेलिवेंट चीज़ें आसपास हो, ताकि कोड बार बार उठना ना पड़े। तो बाहर वो वाली चीज़ अचीव करना मुझसे होता है। अगर मैं ऐसे कुछ रीडिंग वीटिंग कर रहा हूँ तो लैपटॉप लेके कहीं भी चले जाता हूँ, केस कर लेता हूँ। मीटिंग करनी है तो ऐसे बैल्कनी से रीडिंग करने की कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कुछ भी काम कर रहा है जिसमें कीबोर्ड इन्वॉल्व है, अगर कीबोर्ड इन्वॉल्व है तो कीबोर्ड पे ही होगा, हम लिखना है तो कीबोर्ड पे ही होगा। मैकेनिकल कीबोर्ड पे वो ही होगा, नहीं वो तो नहीं वो होगा। आवाज़ चाहिए, एंटर प्रेस होने पे वो आवाज़ आनी चाहिए, तभी वो काम होता That's music to your ears. है। बट फॉर अ न्यू कोडर जिसने भी जॉब ज्वाइन करी है, व्हाट वुड यू रिकमेंड, वर्किंग फ्रॉम होम, रिमोट, और वर्किंग फ्रॉम ऑफिस? आई वुड रेकमेंड वर्क फ्रॉम होम, मतलब टू देम ऑल्सो। मतलब दो चीज़ें हैं, मतलब आप, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के ओपिनियन होंगे, बट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फुल ऑफिस जाते हैं, मतलब 5 दिन ऑफिस जाते हैं। वो यही बोलते हैं वहाँ ऑफिस जाके खेल ही रहे होते हैं, मतलब वो खेलते हैं बैठ के बस। वो आधा घंटा कोड लिखेंगे, फिर उनको टीटी खेलना है, टीटी खेल के थक जाएंगे, फिर आके थोड़ा इधर उधर करके 15-20 मिनट कुछ करा, फिर कोई मीटिंग है। मीटिंग, ऑफिस में मीटिंग लेने का प्रॉब्लम क्या होता है कि मीटिंग है वो इतना दूर होता है, 10 मिनट चल के जाने में लगता है। 10 फिर आते टाइम ऐसे गप चल रही है इधर उधर, फिर लंच हो गया। ऑफिस में लंच 1 घंटा चल रहा है, क्योंकि पहले सब धीरे धीरे चलेंगे, फिर थोड़ी बात हो जाएगी,
फिर वॉक भी, फिर लंच के बाद वॉक भी हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी उतनी आती है। आई बिलीव ऑफिस जाके थोड़ा सा ज़्यादा ह्यूमन टच बन जाता है, दोस्ती थोड़ी सी फ्रेंडशिप और अच्छे से हो जाती है ऑफिस एनवायरनमेंट में। बट क्योंकि मैंने अपना स्टार्ट ही वर्क फ्रॉम होम से करा था, तो मेरे को सही लगता है। और आई बिलीव कंपनी सही प्रॉफिट बना रही थी वर्क फ्रॉम होम में, तो ठीक है। और अगर तुम्हें ऑफिस जाके ही कोई काम करना है, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर्स का मुझे लगता है काम ऑफिस जाके ही ज़्यादा होता है, बिकॉज दे टॉक अ लॉट, और मतलब उनको मीटिंग्स ही ज़्यादा करनी होती हैं, तो आई बिलीव फिर तुम जाके कर सकते हो। बट अगर तुम्हारी मीटिंग नहीं है, तुम्हारी मतलब दिन की एक मीटिंग है या हफ्ते में टोटल 4 मीटिंग है, तो रोज जाके कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, मैं ऑफिस के पीछे ही बैठे हो, तो फिर बिल्कुल ही पीछे रहते हो ऑफिस से, तो चले जाओ, लंच भी फ्री में मिल जाए। मतलब मेरा एक बहुत ही कैजुअल ओपिनियन है, मेरा ऑफिस बहुत दूर है, तो मैं मतलब कम जाना प्रेफर करता अब जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ पे हूँ। वहाँ काम पे करो काम करो, मतलब चिल। and optimize on working coding हाँ, मतलब और कॉल्स कर लो, rather than playing कॉल्स कर लो, calls कर लो. कॉल्स कर लो, कॉल्स पे चीज़ें निपटा लो जैसे। What do you like hate about your job the most? सिटिंग, मेरे Sitting. मेरे को रिसेंटली ऐसे शोल्डर पेन स्टार्ट हुआ था, मेरा वो तो बहुत देर बैठना पड़ता है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, और मेरा बढ़ ही रहा है अभी, मेरा मतलब बढ़ता ही जा रहा है, तो वो कितना कितना स्क्रीन टाइम है अभी? मतलब मेरा है आई गेस 17-16 आवर्स तो है, वो मेरा है मस्ट। और मतलब ऐसा नहीं मुझे कि लगा था मेरा ज्यादा है, 13-14 घंटे. मतलब 17 घंटे मेरा अभी आया था लास्ट वीक, तो ऐसा नहीं है 17 घंटे काम ही हो रहा है, बट फिर अब यहीं बैठ के फिर मतलब मूवी भी देख रहा हूँ, फिर यहीं बैठ के लैपटॉप पे ही देख लेता हूँ, फिर वो कंफर्ट स्पेस बन गया इधर। और मुझे लगता है रिड्यूस कर जाना चाहिए थोड़ा मुझे, बट ठीक है, अभी उस पर एफर्ट मेरे को मारना स्टार्ट करना है। तो ये एक चीज़ मुझे लगती है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया नहीं लगती, वो ये है कि मतलब गुड नंबर ऑफ कंपनीज में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। मतलब मैंने बहुत ही कम ऐसी कंपनीज देखी जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया से बढ़िया लिखी हो लोगों ने, और उनका कोड देख के समझ में आ जाए कि अच्छा मतलब यही हो। गूगल में ऐसा था कि मतलब गुड डॉक्यूमेंटेशन थी, बट फिर भी कुछ सिस्टम्स थे जो मतलब कैसे चल रहे हैं समझ में नहीं आते थे, वो उनके लोग छोड़ के जा चुके हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम मुझे लगती है जो पता नहीं क्यों कंपनीज अभी तक सॉल्व नहीं कर रही और इन्फोर्स नहीं करती। मेरी टीम में इसलिए ये चीज़ होती थी कि यू हैव टू राइट डिजाइन डॉक फॉर एवरीथिंग, तो तुम चले जाओ, स्टिल एवरीबडी हैज एवरी कॉन्टेक्स्ट। बट ये एक चीज़ मुझे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से लगती है कि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन इशूज है। Okay, now the opposite question. What do you love the most about your job? कि पे घर बैठ के हो सकती है. पे Pay. पे Pay grade. पे से लगता है, मतलब I एफर्ट call it an एफर्ट। AC PC job. घर ओके, में बैठ के AC में बैठ के PC में बैठ के हाई पे ले रहे हो. हाँ मतलब पे इज गुड, मतलब यू इट कीप्स यू डिसेंट मोटिवेटेड। Understood. One thing that you are really proud of in your work life कि okay, हमने वो सुन लिया कि यार स्पार्क जनरेट हुआ ऐसे, और एक लाइफ लेसन हुआ जब ऑफर्स डेफर्ड हो गए, बट वन थिंग दैट यू मेड और यू डिड दैट वर यू वर रियली प्राउड ऑफ. I believe the contributions I get in Google for the GPay product, I really love those, क्योंकि जीपे का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता था कि मतलब छोटी सी शॉप पे भी जाओ तो वहाँ पे भी कोई जीपे यूज कर रहा है, वो लगता था अरे ये अपने वाला यूआई यूज कर रहे हैं, इसके हिसाब में तो हमें पता है कैसे चल रहा है। हाँ, और उसका मतलब छोटा सा फोन चेंज मिलियंस का ट्रैक्शन टच करता था। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एक वो बेनिफिट होता है कि एंड प्रॉब्लम कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो या ना हो, बट स्केल बहुत हाई होता था। मतलब मेरे को अभी भी याद है कि मैंने एक बस पहला कंट्रीब्यूशन अपना ये करा था कि एक मैसेज स्ट्रिंग चेंज करी थी। उस मैसेज स्ट्रिंग के इंप्रेशन ही मिलियन में थे कि अब वो मिलियन लोग उस मैसेज स्ट्रिंग को पढ़ रहे हैं। वो एक एरर आने पे आती थी, तो एरर वो भी था कि एरर आ रही है मिलियन लोगों को, बट वो लगता था अरे बताओ तो कोई भी छोटा चेंज कितने लोगों को जा रहा है। तो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। एंड इसके अलावा आई बिलीव कि I teachings I made put efforts. I helped a couple of students. मतलब I still talk to them, और मुझे लगता है कि मतलब they made something good, तो वो वाली चीज़ देख के सही लगता है कि कोई तुम्हारा पढ़ाया हुआ बच्चा सही कर रहा है, तो और फिर आके तुम तुम्हारे साथ ही चेक कर ले, वो बढ़िया लगता है, वो भी एक प्राउड अचीवमेंट है। Hmm. Any mistakes that you made along your, like while going through your journey till now, like one we should be aware of not to make?
आई बिलीव आई मेड मिस्टेक्स अराउंड द कम्युनिकेशंस, कि मतलब मैं सो सो मतलब मुझे किसी ने सिखाया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फुल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ पुश मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फुल मॉडल मतलब तुम्हें किसी को तुम्हारे पास आके इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ रही है, और पुश मॉडल इज कि तुम खुद से ही इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट करनी विजिबिलिटी के लिए। सो इनिशियली करियर में मेरा पुल मॉडल चलता था कि किसी को आके मुझसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती। दैट आई लर्न कि मतलब यू शुड ओवर कम्युनिकेट। मतलब तुम्हारे मैसेजेस अगर ज़्यादा दिख रहे हैं तो बढ़िया ही है कि एवरीबडी हैज़ कॉन्टेक्स्ट ऑन व्हाट यू डू। लोगों को अगर तुमसे आके पूछना पड़ता है ना, तो उससे उनका टाइम जाता है, और फिर वो तुमसे आके कभी पूछ रहे हैं क्योंकि किसी और ने उनसे पूछा। तो ये जो पुल मैकेनिज्म है बहुत ऊपर से आ रहा होता है। दिस कैन दिस नॉट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इट। तो मैं कहता हूँ पुश टू बेस्ड कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि तुमने करा, कर दिया है, नहीं कर दिया, खुद से ही बता दो। मीटिंग में बेशक मत आओ, मतलब तुम मीटिंग ज्वाइन मत करो, बड़ी करती है। लिख दो कि ये मेरी तरफ से अपडेट्स है। तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैप्पी, मतलब तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए उनको कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। बट हाँ, उन पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कोई पीआर अटक रही है तो दे शुड हैव इन्फॉर्मेशन कि मतलब यार अभी पीआर अटकी हुई है, थोड़ा टाइम और लगेगा, ताकि कोई उनसे पूछे तो उन्हें तुम्हारे पास ना आना लाइक दैट। दिस वाज समथिंग दैट आई Understood. बिलीव आई शुड हैव डॉट डन। तो software engineers are notorious for not paying for any software apps. So is there any app on your phone or your machine that you pay for हाँ, so there is a apart note. from GPT? GPT I paid for GPT. I pay for a lot of subscriptions. Like I have paid for Medium. I have a paid Medium subscription. And I have a paid Packet subscription. Packet Pub is a application, right? इसकी बुक्स वगैरह होती है, तो आई हैव अ पेड दैट। सॉफ्टवेयर में आई हैव अ पेड नोट टेकिंग ऐप, आईपैड के लिए आई हैव अ पेड नोट टेकिंग ऐप। Which और one? गुड नोट्स, गुड नोट्स। Good Notes. तो आई हैव पेड फॉर दैट। आई हैव Copilot, पेड Copilot, वो उसका पे लगेगा। तो these are some of the apps that I have paid for। के अलावा मोस्टली काम तो फ्री ऐप से चल जाता है मेरा, लाइक से। हाँ बस these are I guess the paid apps क्योंकि I pay for them। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑल्सो डोंट पे फॉर क्लोथ्स क्योंकि कॉन्फ्रेंसेज में मिल जाते हैं। हाँ, तो कॉन्फ्रेंसेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो क्या फ़ायदा होता है? बट एम यू शुड हैव व्हाइल गोइंग टू अ कॉन्फ्रेंस, एंड कितना टिकट प्राइस देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए? तो देख मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, अगर कॉलेज पे स्टूडेंट हो तो तुम्हें कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टिकट प्राइस बहुत हाई होता है। मतलब 2 लाख की टिकट होगी, 2.5 लाख की टिकट होगी, प्रॉब्ली वोंट बी एबल टू अफोर्ड। और बेस्ट पार्ट है कि कॉन्फ्रेंस में जो भी टॉक्स होती है वो सारी ऑनलाइन फ्री में डलती है। बस ये 3 महीने का नहीं ऐसा होगा, तो यू कैन चेक दैट। बट अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड इफ यू हैव द कैपेसिटी टू पे, मतलब आजकल वो भी है डिसेंट डॉलर्स में, डिसेंट इनफ पे है, तो अगर तुम पे कर सकते हो तो यू शुड ट्राई टू अटेंड मे बी 1 or 2 कॉन्फ्रेंसेस। मैं जैसे मैंने आज तक कभी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए पे नहीं किया, मतलब एटलीस्ट कॉन्फ्रेंस टिकट के लिए पे नहीं किया। आई अप्लाई देयर एज अ स्पीकर, कि अगर मैं वहाँ पे कोई सेशन ले पाऊँ, तो अगर तुम स्पीकर की तरह सेलेक्ट हो जाते हो तो वो थोड़ा बहुत पार्ट रिवर्स कर देते हैं ट्रैवल का, और टिकट तो फ्री दे देते, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं कर लेता हूँ। अगर तुम अटेंडी हो तो तुम स्कॉलरशिप्स लेके जा सकते हो। देयर आर गुड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स, मुझे नहीं मिली आज तक, बट मिलती है लोगों को, तो वो कर सकते हो। बट हाँ, मतलब तुम्हें अगर ऐसे सिचुएशन में जाना है जहाँ पे मतलब सारे लोग एकदम कुछ तो क्रेजी बनाते हुए आए हुए हैं, जैसे मैं रिसेंटली C++ ऑन C पे गया था। तो एक तो मतलब फोकस्टोन में कॉन्फ्रेंस थी, बीच साइड कॉन्फ्रेंस थी, तो एक तो लोकेशन बहुत ही सही चूज करी थी उन्होंने। और मतलब वो वहाँ पे वो लोग आए हुए थे जो तब से कोडिंग कर रहे हैं जब से मतलब इंडिया में शायद कंप्यूटर आए ही थे। वो ऐसे लोग इतने मतलब क्रेजी लोग आए, मतलब वो कंपाइलर के अंदर जाके चीजें बता सकते थे कि अगर गार्बेज वैल्यू आ रही है तो यही गार्बेज वैल्यू क्यों आ रही है। इतना मतलब उनको नॉलेज थी, मतलब इतनी क्रेजी क्रेजी फैक्ट्स लोग बता रहे थे। तो अगर तुम्हें नॉलेज एनहांसमेंट पर्सपेक्टिव से जाना है, ग्रेट वे, बट पे करके मत जाओ। फ्री सेशंस बाद में यूट्यूब पे आ जाते हैं, वॉच देम, और तुम्हें उनको देख के पता लग जाएगा कि तुम्हें उतने हैवी सेशंस सुनने का टेम्परामेंट है भी या नहीं है। उससे रिलेटेड टेम्परामेंट चाहिए, और तुम्हें सारे सेशन अटेंड नहीं करने चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से 3-4 टॉप सुन लो और फिर बाकी थोड़ा नेटवर्किंग पे ध्यान दो, क्योंकि कई बार क्या होता है मतलब नेटवर्क्स या लॉट ऑफ
a lot more your career than your normal skills. मतलब किसी को रिक्वायरमेंट है और उनको पता है कि तुम बहुत ही क्रेजी सी प्लस में सीखते हो, तुम्हें वो कॉन्फ्रेंस में मिले थे, तुमने ये टॉक दी थी, दे विल रीच आउट टू यू देमसेल्फ। मतलब हमारे यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो नेटवर्किंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, बट आप ये नहीं करना। ठीक है. Okay, so one last question before we conclude this. After like going away from this podcast, if there are any specific blogs, YouTube channels, books, or resources or websites that you would recommend our listeners to go through, like that would help them in their coding journey? I believe कि Medium, I really like Medium nowadays. I'm not sure why, but Medium पे मेरे को बढ़िया recommendations आती है. That's why I got a Medium subscription. तो Medium पे you can find a lot of good resources, I believe. That is one, I would say कि you can choose. इसके अलावा YouTube पे एक मतलब अगर तुम YouTube पे जाके एक सर्च टर्म लिखोगे फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन, कोई चैनल आएगा फ्रंट पेज इंजीनियर या फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन करके, पूरे ब्लैक थंबनेल्स है. आई कैन जस्ट वेरी क्विकली चेक क्या है. फ्रंट एंड बस फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन इनमें से ही आना सर. आई डोंट रिमेंबर द चैनल कैन. फ्रंट एंड इंजीनियर चैनल का नाम यही है, फ्रंट एंड इंजीनियर. तो इस बंदे ने मतलब सही डिसेंट प्लेलिस्ट डाली हुई है on learning design stuff. So that is something that people can actually watch अगर उन्हें YouTube पे कुछ बढ़िया देखना है. इसके अलावा I have a known friend, मतलब Arpit, there is some what is Arpit Bayani. He put some really nice tutorials around system design. So you can watch Arpit's content. मैं खुद भी अपने चैनल पे थोड़ा बहुत टेक कंटेंट, Next.js और ये सब किसी न्यूज़ डालता रहता हूँ. You can watch that. इसके अलावा सबस्टैक एक ऐप है, उस पे बाइट गो, जिस एलेक्स यू करके जो बंदा है, उस पे बाइट गो का न्यूज़लेटर है. ही राइट्स नाइस आर्टिकल्स दैट यू कैन वॉच. इसके अलावा अगर लाइक इफ यू हैव टू रीड डीप इंजीनियरिंग स्टफ, तो इंस्टाग्राम, ऊबर और आई गेस स्पॉटिफाई के और नेटफ्लिक्स से, इन चारों के इंजीनियरिंग ब्लॉग्स है. मैंने इनके इंजीनियरिंग ब्लॉग में से रिसेंट ब्लॉग्स पढ़े. दैट इज समथिंग दैट यू कैन वॉच. और अगर बिल्कुल ही 1 मिनट न्यूज़ चाहिए तो एक चैनल है फायरशिप और पोर्टशिप ऐसे करके, वो 1 मिनट में मतलब फुल एनिमेशन से बढ़िया न्यूज़ दे देता है. तो दैट इज समथिंग दैट पीपल कैन वॉच. और बाकी मतलब अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं. जैसे गौरव सिंह की प्लेलिस्ट इज वेरी गुड. यूट्यूब ऑन गौरव प्लेलिस्ट, गौरव से गुड फ्रेंड, तो वो अपनी प्लेलिस्ट में सही चीज़ें डालते रहते हैं. So that is something that people can watch. Okay, so thanks Sanket for doing this. Thanks for your valuable time. I think this would be really helpful for all the viewers of our podcast, and this has been really wonderful. Thanks for joining us. Yeah, thanks Tushar for inviting me. I'm glad. और जल्दी in person मिलते हैं. I'll come to Delhi soon. So let's as soon as possible. Let's meet in person.